بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیز سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ایک بہت ہی بڑے مبلغ، بظاہر جو بہت بڑا مبلغ اسلام ہے، طارق جمیل، اس کی منافقت میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور وہ منافقت وہ ہے کہ جو خود اس کی اپنی زبانی ہے۔ ایک کلپ ہے اس کا، اس میں وہ یہ بات کر رہا تھا کہ امت بن کے رہو، آپس میں خلط ملط، آپس میں جھگڑے نہ کرو، میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ یہ جو اس نے بات کی ہے، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو اور دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، یہ نبی علیہ السلام کے فرامین کے بھی خلاف ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپا رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ بات تمہیں اچھے سے جانتے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جبکہ ترجمہ میں یہ بات کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حق کو چھپا رہے ہو اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر منع فرما رہا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، جبکہ یہ اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہے۔ پھر آگے اس نے یہ بات کی ہے کہ جناب اس قدر شدت اختیار نہ کرو کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاؤ۔ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ تمہیں نبی امت بنا کر گئے تھے، تم فرقے میں بٹ گئے، تو فرقے میں تو یہ خود بٹے ہیں۔ ہم کل بھی خواجہ غریب نواز کو مانتے تھے، ہم آج بھی وہی ہیں، ہم کل بھی داتا صاحب کو مانتے تھے، آج بھی وہی ہیں، کل بھی غوث صاحب کو مانتے تھے، ہم آج بھی وہی ہیں۔ فرقے تو یہ بنے ہیں، انہوں نے سب کو چھوڑا ہے اور اپنے اپنے الگ سے عقائد بنا لیے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ جناب اگر ایسے ایک دوسرے پر کفر کا فتوی دیتے رہے تو جنت میں کون جائے گا؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہ مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوی، جنت میں کون جائے؟ تو جنت میں کس نے جانا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب نے اس کے بارے میں بھی فرمایا ہوا ہے کہ جنت میں کون جائے گا۔ تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کا صریح فرمان کئی کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو ایک نے جنت میں جائے گا، نبی علیہ السلام نے اس کی نشانی بتائی ہے ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت میں جائیں گے، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے خود 72 گروہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو جہنمی کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ الگ سے ہی کام لے کر آگے جناب سارے جنت میں جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ اب ایک بندہ
के सामने आकर ये बात कर रहा है कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माज़रा काफिर है, तो क्या उसके लिए ये कहा जाएगा कि ठीक है तुम अपने अकीदे पर पक्के रहो, हम जनाब हम अपने अकीदे पर पक्के, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। तुम अली को काफिर कहते हो, हम अली को मौला कहते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। हम कहते हैं कुरान सच्ची किताब है और रवाफिज कहते हैं कुरान तब्दील शुदा, तहरीफ शुदा, झूठी किताब है। तो क्या उनके बारे में ये रखा जाएगा कि आपस में तुम क्या कहते हैं एक दूसरे के लिए जगह रखो, वो अपने कीदे पर पक्का रहे, ये अपने कीदे पर पक्के रहे। और कादियानी वो कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद मलून ये नबी है, वो उसको नबी मानते हैं, वो खत्म नबूवत का सरी इनकार कर रहे हैं। तो क्या उनके लिए ये कहा जाएगा कि ठीक है तुम सरकार को आखिरी नबी नहीं मानते, ना मानो, हम आखिरी नबी मानते, लेकिन एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखते हैं। कुछ जनाब वाला अल्लाह तबारक तआला के जिस्म को साबित करते हैं, कुछ अल्लाह तबारक तआला से मौला अली को बढ़ा देते हैं। तो क्या उनके लिए ये कहा जाएगा कि तुम ठीक है तुम अपने अकीदे पर पक्के रहो, तो हम अपने अकीदे पर पक्के हैं, एक दूसरे के लिए गुंजाइश है? क्या ये कहा जाएगा? ये बात गवारा की जाएगी? नबी अलैहिस्सलाम का अपना फरमान है, मन लअना अस्हाबी फअलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइका वन नासी अजमाइन ला युक़बलु मिन्हु सर्फन वला अदल। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे ने मेरे सहाबा पर लानत की, मेरे सहाबा को गाली दी, बुरा कहा, तो उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, तमाम लोगों की लानत है। अल्लाह तबारक तआला ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना उसका नफल कबूल करेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के गुस्ताखों पर लानत भेज रहे हैं, और ये जनाबे वाला कहता है कि एक दूसरे के साथ बैठो। तो हम इसकी मानेंगे या नबी की मानेंगे? और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान मौजूद है, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गालियां मत दो। और आगे फिर फरमाया इज़ा रअयतुम लज़ीना यसुब्बुना अस्हाबी, कि जब तुम देखो कोई ऐसा शख्स है जो मेरे सहाबा को गालियां बक रहा है, फिर तुम क्या करो, फक़ूलु लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम कहो कि तुम्हारे शर के ऊपर अल्लाह की लानत हो। नबी अलैहिस्सलाम हुक्म दे रहे हैं कि जो मेरे सहाबा के खिलाफ बात करे उस पर तुमने लानत करनी है, उसको तुमने ज़लील करना है। और ये कहते तुम एक दूसरे के साथ बैठ जाओ। तो हम इसकी मानेंगे या नबी अलैहिस्सलाम की मानेंगे? और आगे ये खुद अपने एक क्लिप में कहता है कि जो बंदा ये बात कहे कि तमाम सहाबा काफिर हो गए हैं, तो उसकी ये बात करने की वजह से कहने वाले को काफिर नहीं कहा जाएगा। कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। ये अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आया। ये उसके अपने अकाबिर का फतावा जाते हुए कहता मैंने पढ़ा है, और ये बात फतावा रशीदिया के अंदर रशीद अहमद गंगोही ने वाकईतन ये बात लिखी हुई है। तो अगर हम इनको काफिर कह दें तो इनको बुरा लगता है, और कोई शख्स सहाबा को काफिर कह रहा है, इनको कोई परेशानी नहीं है। और फिर एक शख्स है जिसका नाम बिलाल है, बिलाल खान, वो काफी देर पहले वो मर चुका है, उसको कत्ल करवा दिया था। उसके साथ है इसकी काल चली है, एक काल इसकी चली है उसके साथ, और उसमें वो कह रहा था कि देखो मैं खामोशी से देवबंदियत फैला रहा हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे जरिए से देवबंदियत को पूरी दुनिया में फैलाया। मैं उनका दिफा नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं अपने जो वे ऑफ मेरा जो वर्क है ना, मैं वो उसकी डेफिनेशन बेटा आपको बयान कर रहा हूँ। मैं अल्लाह के फज़ल करम से अपने अकाबिर के ही अकायद पर हूँ, लेकिन ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए, उनको करीब करने के लिए है। तो बेटा किसी चीज में भी ना इस तरह एक्सट्रीम होना ये मुनासिब नहीं होता। आप मेरी औलाद की तरह हैं, आप जो भी कहेंगे मैं बड़े प्यार से सुनूंगा। हाँ, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आप मेरे लिए अगर आप समझते हैं कि मैं कोई बहुत गलत कर रहा हूँ या कुफर फैला रहा हूँ, नहीं, मैंने कुफर फैलाने की बात नहीं की मौलाना साहब, जो बात मैंने कही है उससे मैं तजावुज़ नहीं करता। मुझे दीन का जो है ना, आप जितना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे हुदूद का जरूर पता है कि मैं आपको नहीं कहा कुफर फैला रहा। इतना तो करो ना, इतना तो करो ना, जरूर फैला है।
इस वक्त जो एक बात तो अल्लाह ने मुझे दी है ना, एक नेमत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों, कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। मत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों, कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। बेटा, उनको करीब करने के लिए, क्योंकि आप तबलीग के नहज को पूरा समझते नहीं हैं, इसलिए आप ये गुस्से हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। ये उनको करीब करने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी अल्लाह का फजल है, मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ। कई बरेलवी टूट कर आ गए, कई शिया टूट कर आ गए। अल्लाह तबारक तआला मेरे जरिए बरेलवियत देवबंदियत फैला रहा है। हम ये जो कहते हैं ना कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, ये हम सिर्फ लोगों को अपने करीब करने के लिए करते हैं। बाकी मैं कल भी देवबंदी था, आज भी देवबंदी हूँ, और मैं अपने ही बड़ों के अकायद पर हूँ। तो अब देखें इसकी मुनाफिकत। हमें कहता है कि एक हो जाओ, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, जबकि खुद कह रहे हैं कि मैं देवबंदी नहीं फैला रहा हूँ, मैं इस्लाम नहीं फैला रहा है, मैं इस्लाम की बात करता है, और खुद देवबंदी फैला रहा है। और ये उसकी बिल्कुल ताल लगी है बिलाल खान के साथ। तो ये इस तरह के मुनाफिक लोग आ चुके हैं जो दीन के मुबल्लिग बने बैठे हैं। ये कहता है एक हो जाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वारिजी की निशानियां बयान फरमाई, उनमें उनको नमाजी भी कहा, रोजेदार भी कहा, इस्लाम के बातें मानने वाला भी कहा। इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम ने उनको जहन्नम का कुत्ता भी कहा। तो क्या जनाबे वाला हम अपने नबी की बात को छोड़कर इसकी बात पर अमल करेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। हम अपने नबी की ही बात को मानेंगे, हम हरगिज इसकी बात नहीं मानेंगे। तो ये एक मुनाफिक शख्स है जो दोगला पुलिस लगा रहा है। तो ये मैंने आपके सामने सारे उसके प्रूफ आपके सामने रखे हैं कि ये बंदा मुनाफिकत कर रहा है, ये बंदा आपको धोखा दे रहा है, ये बंदा ईमान का दुश्मन है। लिहाजा अपने ईमान को इस इब्लीस से बचाएं और अपने ईमान की हिफाजत फरमाएं। दुआ है अल्लाह तबारक तआला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।